Welcome back, students, to my second session on ionic equilibrium. In the previous session, we've already understood what is meant by ionic equilibrium, and then we went on to understand what is dissociation, and we defined percentage dissociation and degree of dissociation. Then we also understood what are acids and bases, because we saw that substances can be classified into two types. You can have electrolytes and non-electrolytes. So electrolytes we saw were substances that undergo dissociation, and based on the extent of dissociation, you can classify them as strong electrolytes and weak electrolytes. अब ये जो electrolytes जो होते हैं strong या weak, they are basically acids, bases या salts, right? So now we went on and defined acids and bases. We saw the different definitions, Arrhenius theory, then the Lewis concept, as well as the Lowry-Bronsted concept. Okay, so अगर आपने वो नहीं देखा हो तो please go to my previous video and understand these concepts. Okay, so now let us move ahead. Today we'll be understanding what is ionization of acids and bases. Okay, and we will try to derive an expression for the dissociation constant of the weak acid and the weak base. All right. Okay. So moving ahead, what is ionization of acids and bases? जैसे ionization, dissociation ये लगभग similar हैं. Ionization या dissociation means जो acid या base है, they undergo splitting to form ions. तो उसके अंदर जो constituent ions है, they break up into those ions. That is called ionization. तो ये किस हद तक ये ionization होता है? क्या वो acid या base completely ionize हो जाता है या थोड़ा बहुत ही होता है? Depending on that, you can have strong acids and strong bases, and you can have weak acids and weak bases. अब ये strong acids किस आधार पे बोलते हैं? If the acid or base undergoes complete dissociation या complete ionization, okay, पूरी तरह से जितना भी हमने acid लिया वो पूरी तरह से ions में convert हो गया, then we call it as a strong acid. और अगर वो base है तो we will call it as a strong base. And similarly, अगर हमने कोई ऐसा acid या base लिया है जो completely dissociate या ionize नहीं होता है, for example, I can take acetic acid, okay, or I can take let us say a weak base, we can take ammonium hydroxide. तो ये जो acetic acid है, this is a weak acid. Ammonium hydroxide is a weak base because वो completely ionize नहीं होते, partial ionization ही होता है उनमें. लेकिन आपके जो other acids है जो हम laboratory में use करते हैं, जैसे hydrochloric acid है, sulfuric acid, nitric acid, these are all strong acids. सिमिलरली बेसिस में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं. दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, वो पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं. ऑलराइट, ओके. अभी हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, दिस विल बी ऑन वीक एसिड्स एंड बेसिस, बिकॉज इनके आयनाइजेशन पूरी तरह से नहीं होता है. तो हमें लर्न करना है कि इनका डिसोसिएशन किस हद तक होता है. तो वी हैव टू डिफाइन अ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस. ओके, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं सबसे पहले एक वीक एसिड. ये देखो मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिया है HA. HA डिनोट्स अ वीक एसिड. अब ये HA क्यों लिया है हमने? बिकॉज हमने जब एसिड डिफाइन किया था, वी सेड एसिड कंटेन्स प्रोटॉन्स, है ना. तो मैंने यहाँ पे अभी HA लिया है. सो दिस हाइड्रोजन इंडिकेट्स दैट इट इज एन एसिड. तो इससे जब हम डिसॉल्व करते हैं एक्वियस सॉल्यूशन, जब हम इसका बनाते हैं तो इट विल अंडरगो आयनाइजेशन या वो डिसोशिएट करेगा. इट विल फॉर्म पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस एंड नेगेटिव A माइनस आयंस. ओके, तो अब ये जो है यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, तो ध्यान में रखो बच्चों की यू हैव टू पुट अ रिवर्सिबल एरो हियर, तभी वो वीक एसिड या वीक बेस होगा. अब ये वीक एसिड है तो हमने रिवर्सिबल एरो से डिनोट किया है कि HA रिवर्सिबली आयनाइजेस टू फॉर्म H प्लस एंड A माइनस आयंस. ओके, तो अब हमने जो पिछले साल केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक्सप्रेशन लर्न किया था, हाउ टू राइट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यूज करके उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो सिमिलरली ये वीक एसिड के लिए भी हम इक्विलिब्रियम पे जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से लिख सकते हैं. That is Ka is equal to H concentration of H plus ions into A minus ions upon concentration of HA. अब यहाँ पर ये जो Ka है, this Ka is called as dissociation constant of the weak acid. Acid के लिए मैंने यहाँ पर A लिया है. Okay, तो ये what is the dissociation constant of weak acid? It is the ratio of the product of the molar concentrations of the ions to the concentration of the acid. Okay, I'm repeating again.
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड क्या होता है, हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस लेना है ऑन द न्यूमरेटर, उनका प्रोडक्ट लेना है, जो भी आयंस बनते हैं उनका प्रोडक्ट. अभी दिस विल बी रेज टू द स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर अभी कोएफिशिएंट है नहीं, देयर इज नो कोएफिशिएंट फॉर H और फॉर A, तो यहाँ पे H प्लस विल बी रेज टू 1 एंड A माइनस इज ऑल्सो रेज टू 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड जो हमने पहले लिया है. अगेन इसको भी रेज टू स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, बट यहाँ पे कोएफिशिएंट इज 1, सो दिस इज ऑल्सो HA रेज टू 1. तो ये जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसमें जो कॉन्सेंट्रेशंस हम डालेंगे फॉर ऑल दीज आयंस एंड द एसिड, ये होगा उनके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस. Okay, so students, we have learned this in under chemical equilibrium in class 11. Now similarly, if I were to write the dissociation constant for a weak base, then how will we write? अब बेस में होता है OH minus ions, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेस लिया है BOH. अभी OH माइनस होता है तो B पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, तो ये जब आयनाइज करेगा, अगेन रिवर्सिबल एरो दिखाना है, बिकॉज हमने यहाँ पे इसे वीक बेस के तौर पे लिया है, तो रिवर्सिबल एरो दिखाता है कि वो वीक बेस है, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है. दैट मीन्स वो थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम अटेन करता है विद द आयंस फॉर्म्ड. तो आयंस क्या होंगे, B प्लस आयंस और OH माइनस आयंस. तो जैसे ही हम ये वीक बेस को एक्वियस सॉल्यूशन में डालते हैं, मतलब पानी में डालते हैं, तो इट विल आयनाइज टू फॉर्म B प्लस एंड OH माइनस आयंस. चलिए अब देखते हैं कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक बेस विल बी रिटन लाइक दिस, दैट इज KB. यहाँ पे हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए सिंबल तो K है, B इंडिकेट्स कि ये वीक बेस के लिए है. अब बेस में ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस फॉर्म, कौन से आयंस फॉर्म हुए, B प्लस एंड OH माइनस आयंस, रेज टू द स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, एंड डिवाइडेड बाय द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वीक बेस, दैट इज BOH. ओके, अब ये ध्यान में रखो कि ऑल दीज कॉन्सेंट्रेशंस आर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस. तो अगर आपको पूछते हैं कि डिफाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, तो उसे आप कैसे डिफाइन करोगे. द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड और अ वीक बेस इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ देयर आयंस to the molar concentration of the acids raised to their stoichiometric coefficients, where the molar concentrations are the equilibrium concentrations. Okay, तो चलो आगे बढ़ते हैं. All right, so now we come to a very important law, that is Ostwald's dilution law for weak acid as well as for weak base. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड क्या कहता है. तो इसके लिए हमें एक छोटा सा डेरिवेशन करना है. दिस डेरिवेशन इज जनरली आस्क्ड फॉर 2 to 3 मार्क्स. ओके, तो सबसे पहले अगर आपको बोलते हैं कि डिराइव द ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, एक्सप्रेशन फॉर ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर अ वीक एसिड, तो आपको वीक एसिड का जो जनरल इक्वेशन है वो आपको पहले लिख के लेना है. तो ध्यान में रखो कि वीक एसिड मतलब उसमें हाइड्रोजन आयंस होने चाहिए. सो हमारा फॉर्मूला होगा एसिड का HA. So it will dissociate or it will ionize to form H plus and A minus ions, और ये aqueous medium में होना चाहिए, तो सब जगह हमें AQ डिनोट करना है. ओके, नाउ इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा. लेट अस अज्यूम कि इनिशियली मैंने 1 मोल ऑफ एसिड को डिसॉल्व किया इन द aqueous solution. ओके, तो अभी उसका आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा इनिशियली, यस 0. ओके, इनिशियली H प्लस आयंस 0 होंगे और A माइनस आयंस भी 0 ही होगा. बट जब वो आयनाइजेशन हो जाता है तो इक्विलिब्रियम अटेन कर जाता है आफ्टर सम टाइम. इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, सम अमाउंट ऑफ HA विल डिसोशिएट. ओके, या वो आयनाइज होगा. तो कितना आयनाइज होगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देखा हुआ है. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं बाय अल्फा. तो अगर अल्फा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी अल्फा नंबर ऑफ मोल्स आर अंडरगोइंग डिसोसिएशन, तो अभी इक्विलिब्रियम पर HA का कितना रह जाएगा, it will be 1 minus alpha. So concentration of HA at equilibrium will be, number of moles will be 1 minus alpha. अब H plus ions कितने होंगे, H plus ions होंगे जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उतना, that means alpha. Okay, और A minus होगा again alpha. All right, okay, अब ये तो हुआ उसका नंबर ऑफ मोल्स. तो अभी उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, बिकॉज हमें
डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर्मूला में डालने के लिए वी वांट द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द एसिड एंड द आयंस. ओके, तो अभी जो हमने लिखा है 1 माइनस अल्फा, अल्फा ऑफ H प्लस एंड अल्फा ऑफ A माइनस, ये जो है दिस डिनोट्स द नंबर ऑफ मोल्स. ओके, बट अभी हमें कॉन्सेंट्रेशन अगर चाहिए तो वी हैव टू put this number of moles divided by volume. N upon V is concentration. So let us denote the concentration by dividing by V. तो ये हो गया, let us say 1 minus alpha in V liters of solution. Okay, volume of solution जो मैंने लिया है वो V liters है. So 1 minus alpha upon V. तो ये हो गया अभी concentration of HA at equilibrium. Okay, अब H plus ions का concentration कितना होगा at equilibrium? जो नंबर ऑफ मोल्स है अगेन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन वी. एंड सिमिलरली A माइनस का भी होगा अल्फा अपॉन वी. तो चलिए अब हम ये जो कॉन्सेंट्रेशंस के वैल्यूज हैं ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड का एक्सप्रेशन हमने अभी देखा था कि Ka इज इक्वल टू H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA. तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यूज. So we get Ka is equal to alpha by V into alpha by V upon 1 minus alpha by V. Okay, so now let us just simplify this. So what happens on simplification? ये हो जाएगा alpha square upon V square into 1 minus alpha upon V. तो एक V cancel हो जाता है and you get the final expression that is Ka is equal to alpha square अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी. ओके, अब ये जो 1 माइनस अल्फा टर्म है ये बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी है. मतलब हम ये अल्फा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर बहुत ही छोटा है तो वी कैन निग्लेक्ट दिस 1 माइनस अल्फा. तो फिर हमें एक्सप्रेशन मिलेगा Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी. ऑलराइट, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड. इसको ध्यान में रखिए. चलिए अब हम देखते हैं कि बेस में क्या होता है. बेस में भी सिमिलर ही रहेगा. ओके, बस आपका इक्वेशन बदल जाएगा. क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है. अगर आपको पूछा गया है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस, देन यू हैव टू पुट द जनरल एक्सप्रेशन फॉर वीक बेस. तो वीक बेस, बेस मतलब OH माइनस आयंस. तो चलिए मैंने ले लिया यहाँ पे B प्लस एंड OH, दैट मीन्स BOH हो गया मेरा बेस. इट विल अंडरगो आयनाइजेशन पार्शियली, तो रिवर्सिबल एरो दिखा दिया. And then it forms B plus and OH minus ions. Okay, अब इसमें फिर से हम डालेंगे इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स. बेस का 1 है, आयंस का हो जाएगा 0 and 0. ओके, इनिशियली तो आयनाइज नहीं होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम अटेन कर जाने के बाद अगर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो BOH का कितना रह जाएगा सॉल्यूशन में? इट विल बी 1 माइनस अल्फा नंबर ऑफ मोल्स. ओके, 1 माइनस अल्फा रह जाता है एट इक्विलिब्रियम. और B प्लस के रहेंगे अल्फा मोल्स और OH माइनस के भी रहेंगे अल्फा मोल्स. ऑलराइट, तो ये तो हो गया उनके नंबर ऑफ मोल्स. अब हम उसे कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करते हैं. सो आई हैव 1 माइनस अल्फा अपॉन V, अल्फा बाय V एंड अगेन अल्फा बाय V. तो सेम जो आपने वीक एसिड के लिए देखा था सिमिलर, बस ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है कि बेस का है तो ये वाला इक्वेशन, अगर एसिड का है तो HA वाला इक्वेशन आपको डालना है. ओके, तो चलिए अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इन द एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, मतलब Kb वाले एक्सप्रेशन में. तो यहाँ पे हमें मिल गया Kb इज इक्वल टू B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH. इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यूज, तो हमें मिलता है अल्फा बाय V इंटू अल्फा बाय V अपॉन 1 माइनस अल्फा बाय V. तो इसको हम जब एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बाय V. ओके, अब आगे देखते हैं. ये जो एक्सप्रेशन था अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बाय V, ये एक्सप्रेशन जो है इट इज कॉमन फॉर बोथ, दैट इज फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एज वेल एज फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, राइट. तो एक मिनट, अभी यहाँ पे यस, ओके, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V. ओके, तो ये जो 1 माइनस अल्फा है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो अल्फा है इट इज वेरी स्मॉल, बिकॉज ये वीक बेस है या वीक एसिड है, तो इनके जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बहुत ही कम रहते हैं. तो वो बहुत कम होने की वजह से वी कैन से दिस 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. तो ये 1 माइनस अल्फा को हम 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं या इट इज नेग्लिजिबल, तो हम उसको हटा देते हैं. सो यू गेट द एक्सप्रेशन अल्फा स्क्वायर अपॉन V.
So this Ka equal to Kb equal to alpha square upon V. इसको जब हम rearrange करेंगे, तो what do we get? We get Ka is equal to alpha square into C. ये जो 1 upon C होता है, initially हमने ध्यान में रखो, we have taken 1 mole of acid and 1 mole of the weak base, है ना, दोनों derivations में. तो अगर number of moles 1 है, तो what is 1 upon V? Number of moles upon volume is concentration. तो 1 by V की जगह में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ concentration, that is C. So Ka equal to alpha square by V, I can also write as alpha square into C. अब ये के ए मैंने लिखा है, बट ध्यान में रखिए कि के ए एंड के बी के लिए दोनों का सेम एक्सप्रेशन ही होगा. ओके, ऑलराइट. तो ये हम अल्फा के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, तो आई कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ए अपॉन सी, और इट इज के ए मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. तो ये जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ. दिस लॉ इज कॉमन फॉर वीक एसिड एज वेल एज फॉर वीक बेस. बस डेरिवेशन करते समय आपको इक्वेशन जो आप स्टार्ट ऑफ करोगे वो डिफरेंट होगा, और जो के ए का एक्सप्रेशन लिखोगे वो डिपेंडिंग अपॉन एसिड या बेस उसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा, बट अल्टीमेटली जब आप डिराइव करोगे दोनों का फाइनल एक्सप्रेशन एक ही होगा. तो आपको मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ए अपॉन सी अगर आप एसिड के लिए कर रहे हो, और अगर बेस के लिए करते हो तो यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बी अपॉन सी, और के ए इंटू वी या फिर के बी इंटू वी, depending on acid है या base. Okay, that is the only difference, otherwise the formula is the same. So what is Oswald's dilution law then? तो इसको हम generalize कर सकते हैं. We can say alpha, that is the degree of dissociation, is equal to square root of a constant. ये तो constant है, Ka is a constant. So what is it depending upon? It is depending on the concentration. तो concentration के साथ ये alpha कैसे depend होता है? It is inversely proportional to the concentration. मतलब अगर concentration ज्यादा होगा तो degree of dissociation कम होगा, और अगर concentration कम है that means dilute solution है, तो वहां पे degree of dissociation ज्यादा होता है. And that is why जब भी आप qualitative analysis करते हो, मतलब volumetric वगैरह करते हो, तो वहां पे हम आपको dilute solutions देते हैं, because वहां पे degree of dissociation बढ़ जाता है, so it becomes easy to calculate. Okay, now what is the relation between alpha and volume? The degree of dissociation is directly proportional to the volume. तो जितना volume ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो dissociate होगा. Okay, dissociation process fast होगा, मतलब more ions form होंगे. So you have to make the solution more dilute if you want to increase the degree of dissociation. All right, I hope this is clear to all of you all. So that's all for today. Thank you. Keep studying and look forward to my next session, where I'll be proceeding with the auto ionization of water, as well as we will understand how to determine the pH of solutions. Very interesting session is going to come up next, so please stay tuned. Thank you.